ریاست پاکستان کی گری ہوئی پالیسی آپ دیکھیں اس وقت وہ کس سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سرکاری سطح پر سرکاری عوامی ایکشن کمیٹی بنا کے سرکاری سطح پر اس کا ابتدا کرایا جاتا ہے اور اس کو سرکاری سطح پر جو ہے کوئی ڈونیشن دی جاتی ہے 30,000 روپے کا لے. یہ قوم پرست یا یہاں کے حق پرست اور ترقی پسند و قدرتی وسائل کی یوٹیلائزیشن کے خلاف ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ یہ قدرتی وسائل کا استعمال آج شروع نہیں ہوا یا آج سے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے شروع نہیں ہوا. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت سے یہاں گلگت بلتستان کے اندر جو ہے قدرتی وسائل پہاڑوں پر موجود پتھر کی پریشیس سٹونز کے اوپر 1947 سے پہلے سے کام ہو رہا تھا. کل تک منرل ڈپارٹمنٹ کو کل بن کے کل انہوں نے جو ہے منرل مائننگ کنسیشن سی 2016 میں بنے. اس سے پہلے جو کام کر رہے تھے وہ یہاں پر لوگ کر رہے تھے. ریاست اگر صحیح معنوں میں مخلص ہے واقعی میں اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو کمیونٹی لیزنگ کانسیپٹ ہم نے جو دیا ہے اس پر کام کرے ورک آؤٹ کرے. جس ایریا میں جو وسائل پائے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پولیس ملنا چاہیے وہیں پر کام کرے کام کر کے لے کے جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انتظار مہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف وزڈم. ناظرین، ویوز آف وزڈم کے اس سیریز میں ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد نفیس، ایڈوکیٹ، بانی رہنما بلاورستان نیشنل فرنٹ اور صدر گلگت بلتستان لائرز ونگ عوامی ایکشن کمیٹی. سر، سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی سیاسی جد و جہد کب سٹارٹ ہوئی اور اس جد و جہد میں آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت شکریہ. میری سیاسی جدوجہد میں انٹر پاس کرنے کے بعد 1994 میں بلوچستان نیشنل فرنٹ جوائن کیا تھا. تو 94 کے بعد 96 کے اندر بلوچستان نیشنل فرنٹ اور ترقوم نیشنل موومنٹ کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف جو ہے کرمنل کیسز ہو گئے. اس کے بعد جو ہے 96 میں 97 میں اور 2000 میں کیسز ہو گئے جس میں میری جو جدوجہد ہے وہ 2 سال 6 مہینہ میری پریزن لائف ہے. جیلوں میں رہا ہوں اور 17-18 سال جو ہے وہ کرمنل ٹرائل میں عدالتوں میں رہا ہوں. اس وقت بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ کرمنل کیسز رجسٹر ہیں ریاست کی طرف سے. تو ضمانت پہ ہیں، ہم اپنے ٹرائل فیس کرتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے بنیادی انسانی، جمہوری، سیاسی، معاشی اور جو تاریخی حقوق ہیں، آئینی حقوق ہیں، ان کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں. اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو قوم پرست ہے وہ قومی وسائل ہے، جو قدرتی وسائل ہے، ان کے استعمال کے خلاف ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. ایسا کوئی فورم نہیں تھا جو کسی نے ہمیں اس بارے میں نہیں پوچھا. یہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم پرست یا یہاں کے حق پرست اور ترقی پسند و قدرتی وسائل کی یوٹیلائزیشن کے خلاف. ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ یہ قدرتی وسائل کا استعمال آج شروع نہیں ہوا یا آج سے 2 سال 4 سال 5 سال پہلے شروع نہیں ہوا. جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت سے یہاں گلگت بلتستان کے اندر جو ہے قدرتی وسائل پہاڑوں پر موجود پتھر ہیں ان کو نکالا جا رہا تھا. ان کو باقاعدہ تجارت ہو رہا تھا. ہم ان قدرتی وسائل کی یوٹیلائزیشن کے خلاف نہیں، ہم استحصال کے خلاف ہیں. یہ بات آپ نوٹ کریں. استحصال کس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو منرل ڈپارٹمنٹ یہاں بنا، جب سے یہاں پر جو لیزنگ کا کانسیپٹ شروع ہوا تو مختلف کمپنیز نے مختلف علاقوں کے اندر لیزز حاصل کی. اب یہ بہت بڑا جو ہے وہ سیکٹر ہے. اس میں پریشیس سٹون ہے، سیمی پریشیس سٹون ہے ایک سیکٹر یہ ہے. ایک ہے انڈسٹریل مٹیریلز ہیں، ایک چیپٹر یہ ہے. اور تیسرا جو چیپٹر جو ہے وہ میٹلز ہیں. میٹلز میں بیس میٹلز ہیں اور جو ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں اور دوسری چیزیں جو ہے عام میٹلز ہیں. ان میٹلز کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے کام شروع نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ پریشیس سٹونز کے اوپر 1947 سے پہلے سے کام ہو رہا تھا.
कल तक मिनरल डिपार्टमेंट तो कल बन के कल इन्होंने जो है मिनरल माइनिंग कंसेशन सी 2016 में बने हैं। उससे पहले जो काम कर रहे थे वो यहाँ पर लोग कर रहे थे। ये क्या तिजारत नहीं है कि ये जो लोग पहाड़ों पर जो है वो प्रेशियस स्टोन निकाल के मुल्क से बाहर बेचते हैं, उससे ज़र मुबादला पाकिस्तान की रियासत को मिलता था। कस्टम कीमत में, टैक्स कीमत में, इनकम टैक्स कीमत में जो है वो ऑलरेडी रियासत को मिलता है। तो हम खिलाफ क्यों? अब जब टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, इसमें जो है इक्विपमेंट्स नहीं आ गए, तरीके नहीं आ गए, तो ये थोड़ा सा जब ज़्यादा निकल गया तो जो इस्तेहसाली तबका है पाकिस्तान के अंदर इस रियासत के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके हुक्मरान, इसके जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इसके जो जनरल हैं, इसके जो मुक़्तदर हल्के जिनको आप कहते हैं, वो सिर्फ इस रियासत के साथ जो है वो खलवाट कर रहे हैं, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के साथ। मैं आपको ये बताऊं कि ये जितनी भी माइनिंग सेक्टर के अंदर लीज़ इशू हो गया, क्या आपके ख्याल में जो है पहाड़ों पर वाकई में कोई माइनिंग हो गई है? नहीं हो गई है। वो क्या करते हैं, डॉका डालते हैं। एक बंदा लीज लेता है, वो डॉक्यूमेंट भेजता है दूसरे को, वो तीसरे को बताता है कि वो चौथे को, यानी कमीशन कीमत पर एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। बस वो एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स भेज के जाके आखिर में बेचारा एक जो है चाइनीज सा एक फॉरनर जो है आके फंसता है, फिर उसको यहाँ से भगाने के लिए सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बनाते हैं। सही, ये एक डाकामारी है। हम उसके लिए अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से और बलूचिस्तान नेशनल प्लेटफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म से हमने एक पूरा तस्वुर दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट दिया है कि इस सरकार को कि कम्युनिटी लीजिंग को कॉन्सेप्ट दिया जाए। जिस इलाके के अंदर जो है कुदरती वसाइल पाए जाते हैं, उस इलाके की कम्युनिटी के नाम पर जो है लीज दिया जाए। एक सोसाइटी बनाए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 10 कंपनियां बनाए, लीज उनके पास रहे तो उनका शराकत होगा उस चीज के अंदर। रियासत के ऊपर जो है उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि रियासत ने हमें लीज दिया है, हम इस चीज के मालिक है। हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अब मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान के अंदर 6000 अरब डॉलर के जो है हामिद मीर की पूरी जो है उसमें वो जो है रिपोर्ट आ गई इस चीज के अंदर, जियो न्यूज के अंदर 6000 अरब डॉलर का तानबा भेजा है सिर्फ क्रोमाइट और दूसरी चीजें जो छोड़ो। पाकिस्तान का पूरा अर्जा तो 200 अरब डॉलर होंगे ना। 6000 अरब डॉलर का जो है तानबा बेच के इनके कर्जे जब नहीं उतरते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल यहाँ इतने नहीं है। सही, कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी लीजिंग को कॉन्सेप्ट, उस तस्वुर को, उस कॉन्सेप्ट को फरोग दें। यहाँ मुकामी लोगों को जो है लीजेस इशू हूँ, इन्वेस्टर लाए या लोग खुद लाएंगे। इस वक्त भी जो है लोग इन्वेस्टर ला के बैठे हुए हैं, जिससे मुल्क को कस्टम कीमत में, इनकम टैक्स कीमत में रियासत को, इससे रियासत खसारे में नहीं है। हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसको रोकने के लिए ये नहीं है कि मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का मुकामी आदमी या जो कम्युनिटी लीज लेके जो है मिनरल्स यहाँ से या मेटल्स यहाँ से एक्सपोर्ट करती है तो उसने इनकम टैक्स देना है, GST देना है और जो मिनरल स्कूल्स के अंदर जो भी ड्यूटीज हैं वो देना है। अगर वो पैसे कोई इंटरनेशनल आदमी जो बाहर का कोई चाइनीज भी देता है वो भी उससे भी ये ड्यूटीज देनी है, या पंजाब का कोई सरमायादार या कोई जागीरदार या कोई जर्नल आके करता है तो उसका तो छूट किसी को हासिल नहीं है। नुकसान इसमें क्या है? अब पंजाब का सरमायादार लीज लेता है या चाइनीज लीज लेता है तो उसकी पूरी वैल्यू जो है इस मुल्क की सरहदों से बाहर मुंतकिल होती है। अब गिलगित बल्तिस्तान का आदमी लीज लेता है तो उसकी पूरी वैल्यू यहाँ रहेगी। सरकार बिल्कुल किसी भी मत में खसारे में नहीं है, खसारे में हम हैं। सही, हम है, इसलिए हम इस चीज को रोकते हैं, इसलिए हम इस चीज के मुखालिफत करते हैं कि हमारा इस्तेहसाल हो रहा है, हमारे वसाइल, कुदरती वसाइल, उनकी पूरी वैल्यू जा रही है। कम्युनिटी को आप क्या दे रहे हैं? 2% माइनिंग कंसेशन रूल के अंदर है, 2% में हम क्यों दें? सही, 2% में हम अपने कुदरती वसाइल क्यों दें? हम देने के लिए तैयार नहीं है। रियासत अगर सही मानों में मुखल्लिस है, वाकई में इस चीज को करना चाहते हैं तो कम्युनिटी लीजिंग कॉन्सेप्ट हमने जो दिया है उस पर काम करे, वर्कआउट करे। जिस एरिया में जो
वसाइल पाए जाते हैं वहाँ के लोगों को वो लीज मिलना चाहिए। वहीं पर काम करे, काम करके लेके जाएं और सही। इस पर जो है इन्वायरमेंट का ख्याल रखा जाए। और यहाँ जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टूरिज्म का टूरिज्म सेक्टर है, इस चीज के अंदर उसका ख्याल रख के SOPs पे जो है इस तरह। सर आपने यहाँ पे बात की गिलगित बल्तिस्तान कुदरती वसाइल में इस वक्त डूबा हुआ है और वजीर आजम पाकिस्तान की नजरें भी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जमी हुई है। तो सर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुदरती जो वसाइल है, मिनरल्स है, उनके हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या पोटेंशियल है गिलगित बल्तिस्तान में? मैं समझता हूँ कुदरती वसाइल के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान पूरा भरा हुआ है। इसमें पहले भी मैंने आपको कहा कि प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन जो ऑलरेडी यहाँ पर काम हो रहा है, जो कीमती पत्थर। यहाँ आपका जो पिशावर KPK है, वो मरकज से यहीं से जितने भी प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं, कीमती पत्थर, वो वहाँ जाके उधर से मुल्क से बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं, जिससे सीमेंट बनता है, जिससे जो है दूसरी चीज़ें बनती हैं, ग्रेनाइट है, मार्बल है और ये चीज़ें हैं, इन पर अभी काम शुरू हुआ है। और जो मेटल्स है, मेटल्स में आपका कॉपर है, अच्छा आपका जो है लेड है, आपका एंटीमनी है, आपका जो है वो दूसरा स्टील वगैरह है, बहुत सारे जो है मेटल सेक्टर में है। और इसमें बेस मेटल्स में है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें यहाँ पाए जाते हैं। ये इनके मैप्स यहाँ पर जो है इससे पहले भी जो है सर कुदरती वसाइल की मलकियत के हवाले से आपका क्या ख्याल है सर? ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के हम बाशिंदे हैं। जब पाकिस्तान नहीं था उस वक्त हम रियासत का वजूद रखते थे। जब हिंदुस्तान पूरा 17वीं सदी में पूरा हिंदुस्तान भी वजूद नहीं रखता था, इवन अफगानिस्तान का भी कोई वजूद नहीं था, उस वक्त हमारी रियासतें थीं। तो इस खित्ते के अंदर जो है 1842 के बाद साम्राज्य की नज़रें यहाँ पर पड़ी। तो यहाँ जो है इस खित्ते के अंदर बाहर से लोग आ गए, लड़ने पे आ गए। यहाँ पे जो है पहले पंजाब दरबार और महाराजा कश्मीर और अंग्रेज मिलकर इस खित्ते को फतह किया। 1947 में हम लोगों को निकाला दिया है। तो ये सरजमीन हमारी है। जब अब यहाँ के वासी हम हैं तो कुदरती वसाइल किसके? कुदरती वसाइल भी हमारे हैं। तो हम इस मत में जो है सर मलकियत का दावा करते हैं। सर आखिर में सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सर गिलगित बल्तिस्तान के जो पुराने तिजारती रास्ते मौजूद थे, अब वो जो बंद हैं, इनके हवाले से आपकी क्या राय? ये भी बहुत अहम सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने मीर ऑफ हुमज़ा के ट्रीटीज चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हैं, इतने पाकिस्तान के 70 साल तारीख में इतने मुआहिदात नहीं है। आप वजारत खारिजा में जाकर देखो तो चाइना के साथ पाकिस्तान के इतने हैं, जबकि हुमज़ा के मीरान का जो है उसके साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ इतनी बड़ी फाइल पड़ी है वहाँ पर। तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग सिल्क रूट से चाइना के साथ कारोबार करते थे। उसी सिल्क रूट से जो है पामेर और आपका जो है वाखान की पट्टी और चतराल से सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ, और ईस्ट साइड पर हम लद्दाख करगिल के बिया जो है इंडिया के साथ, और इंडस रूट से होते हुए हम सिल्क रूट से होते हुए हम पाकिस्तान के साथ तजारती हमारा वो करते थे। हमारे सिल्क रूट के हवाले से इब्न बतूता ने लिखा है, जो कि 1000 कुछ में जो है यहाँ आया है, उसने हमारे रूट के हवाले से अब बोला है। तो अब यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो है वो बैनुल-अक़वामी जो तिजारती रास्ते इस रियासत ने सलब किए हैं, में जो है चतराल से जाके आपके सेंट्रल एशिया के हमारे रास्ते बंद हैं। हिंदुस्तान और कश्मीर के साथ जो है हमारे तिजारती रास्ते बंद हैं। सिर्फ ये चाइना बॉर्डर खुला हुआ था, इस पर भी चाइनीज गवर्नमेंट की मेहरबानी के अंदर जो है कारोबार की बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश। बॉर्डर ट्रेड का जो है कॉन्सेप्ट लेकर इन्होंने एक अच्छा 1985 में मुआहदा किया था, जिसमें बॉर्डर ट्रेड का मतलब स्पीड पे या अपनी छोटे पैमाने पर माल लेके जाएंगे चाइना में, उतार के वहाँ से जो है लेके आएंगे। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, पहले तो यहाँ पर इतने जो है एग्रीकल्चर की चीज़ें खेती लगाते, आलू लगाते, लगाए। तो हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट 4 से 5 घंटों के अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच जाते हैं।
हमारे इस मुल्क की मार्केट जो है उसके लिए हमें 24 घंटे 18 घंटे ट्रेवल करना पड़ता है। बिल्कुल हमारा जो चेरी का पैकेट आप पिछले साल लोग जाने लेके गए थे, वहाँ 200 युआन में एक पैकेट बिका। वो पैकेट चेरी का पैकेट इधर इस्लामाबाद में ले जाते हैं 260। ये हमारे जो पाकिस्तान के जो फार्मर्स हैं इनका पूरा इस्तेहसाल हो रहा है। और इस वक्त जो है 8 से 10 हज़ार जो है बॉर्डर पास जो है इसी लेके इस पर जो है आज उनको ज़्यादा करने से होता हुआ 50 लाख यूनिवर्सिटी से आया हुआ नौजवान, इसके बाद 50 लाख कहाँ से आए? अब जो इन्होंने मतलब चेंज किया है इन्होंने मतलब कि हमारी बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल हमारे ट्रेड को रोका है। बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है 50 लाख का, साथ में फिर फीस भी इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है। ये बहुत बड़ी ज्यादा। अब एक नौजवान जाना चाहता है तो उससे बहुत ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान का नौजवान कभी भी इस सियासत को माफ नहीं करेगा। हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा, हमारा फार्मर मर रहा, हमारा बेरोजगार मर रहा है, हमारे जो बैनुल-अक़वामी तिजारत रिपोर्ट है बहुत बुरी सिचुएशन में जो है वो है। तो इन चीज़ों के लिए हमने जो है अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी तरक्की पसंद यहाँ जितने भी नेशनल करते हैं रियासत पाकिस्तान की गिरी हुई पॉलिसी आप देखें इस वक्त वो किस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि सरकारी सतह पर सरकारी अवामी एक्शन कमेटी बना के सरकारी सतह पर उसका इब्तिदा कराया जाता है और उसको सरकारी सतह पर जो है कोई डोनेशन दी जाती है। 30,000 रुपये का कोऑर्डिनेटर ने जो है एक सरकारी अवामी एक्शन कमेटी को ढूंढ कितनी शर्म और जो है कितनी अजीमत की बात है। यहाँ का गिलगित बल्तिस्तान का नौजवान जो है वो इस रियासत के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है अपने वसाइल से, वो अपनी मलकियत का और रियासत तैयार नहीं है। जो है देख रहे हैं ना इस ग्रुप के अंदर जर्नल जाके जजीरे खरीदते हैं, सियासतदान जाके जो है यूरोप और मिडल ईस्ट के अंदर प्रॉपर्टी और आवाम साली रूल रही है। हम अपने वसाइल देखने के करते हैं भाई, हमने वो करते हमने हासिल नहीं किए, वो डॉलर हमने नहीं लाया। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन रिच है, ये उनकी मेहरबानी नहीं है, मेरी सरजमीन। बिल्कुल सर, हम अपना खुद करते हैं। देखो रियासत के दो ही काम होते हैं, रियासत के दो कामों में अगर वो एहसन तरीके से ये दोनों काम अंजाम दे दे तो लोग कायल होते हैं उस रियासत के दो कामों में। पहला काम सिक्योरिटी है। इस पूरे मुल्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टेररिज्म फरोग करके पिछले 40 सालों से यहाँ लोगों को सिया और सुनी करके लड़ाया गया। ये मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल ये हमारे रास्तों से हमारे लोगों की जो है लाशें आ रही हैं। पहला काम रियासत का सिक्योरिटी मेंटेन करना, उस पर फेलियर अवाम के सामने है। दूसरा काम जो है इस रियासत का बुनियादी काम जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करना। बाकी मैं तो मोबाइल के जरिए से भी टैक्स देता हूँ, मैं चीज़ें खरीद के भी मेरी GST वहाँ जमा है। 1947 से अब तक ये रियासत हमारे जो है इस खित्ते के अंदर इकोनॉमिक सेंसस नहीं कराते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग मजबूरी तौर पर ये नफ़ा में है नुकसान में है ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं दिया जाता है। सेंसस कराए, ये हमारी सरजमीन उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए सेंसस रिपोर्ट कराए गिलगित बल्तिस्तान की हमारे खित्ते से अंदर कितनी चीजें जनरेट, कितना रेवेन्यू जनरेट होता, हमारी GST और हमें कितना मिल रहा है जो जमा हो रहे हमें पता चले। बिल्कुल सर, अगर कम जमा होता है हमारी आबादी के रेशो के हिसाब से हम कुदरती वसाइल देंगे, तरीकाकार को ये SOP तैयार करके देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। तो नाज़रीन फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, कुछ नए सवालों के साथ, और ये सिलसिला जारी रहेगा।